میں آج کشتی کے بارے میں بات کروں گا اور میرے پیغام کا جو عنوان ہے وہ ہے اچھی کشتی، گڈ فائٹ۔ آر یو ریڈی؟ سننے کے لیے تیار ہے؟ ہلو، تیار ہے سننے کے لیے؟ تو ہم پڑھیں گے دوسرا تیموتھیوس اس کا 4واں باب اور اس کی 6ویں آیت۔ یہاں لکھا ہے، میں اچھی کشتی لڑ چکا، میں نے دوڑ کو ختم کر لیا، میں نے ایمان کو محفوظ رکھا۔ یہاں ایک بہت بڑے ریسلر، بہت بڑے فائٹر کا بیان ہے۔ آپ جانتے ہیں وہ کون ہے؟ پولس رسول۔ وہ لکھ رہا ہے تیموتھیوس کو کہ میں اچھی کشتی لڑ چکا، I have fought a good fight، میں نے اچھی لڑائی لڑی ہے اور میں نے دوڑ کو ختم کیا ہے۔ کس کس نے یہ آیت پہلے سنی ہے؟ اچھا، کس کس نے یہ آیت دیکھی ہے؟ قبرستان میں اکثر کتبوں کے اوپر یہی لکھی ہوتی ہے۔ اب پالوس کی جو کشتی ہے، جو لڑائی ہے، جو دوڑ ہے، اس کا ذکر میں آگے جا کے کروں گا، لیکن ابھی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں بھی بہت سی دوڑیں ہیں، دنیا میں بھی بہت سی کشتیاں لڑی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے وہ بری عادات کا شکار ہے، اس سے وہ عادت چھوٹتی نہیں، تنگ ہے وہ بری عادات سے، مثلاً گالی۔ ایک شخص گالی چھوڑنا چاہتا ہے اور وہ بڑی کوشش کرتا ہے کہ اس کے منہ سے گالی نہ نکلے، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے گالیاں بکنے والے آسمان کی بادشاہ کے وارث نہ ہوں گے۔ لیکن بہت سے لوگ فائٹ کر رہے ہیں، جنگ لڑ رہے ہیں، ان سے چھوٹتی نہیں ہے۔ جیسے غالب کہتے ہیں چھوٹتی نہیں ہے گال، یہ کافر منہ کو لگی ہوئی، تو یہ منہ کو لگی ہوئی چھوٹتی نہیں ہے، عادت پڑ چکی ہے، اور ایسی عادت ہے کہ وہ گالی تک نہیں چھوڑ سکتے، اور وہ سوچتے چھوٹی سی بات ہے۔ ہاں، کوشش کرتے ہیں، وہ مطلب کہ فائٹ کرتے ہیں، جنگ لڑتے ہیں، کشتی لڑتے ہیں کہ یہ چھوٹ جائے، نہیں چھوٹتی، اپنے آپ سے نہیں چھوٹتی۔ ایک ہی حل ہے، خداوند یسوع مسیح کے سامنے جھک جائیں اور کہیں، اے خداوند مجھ سے نہیں چھوٹتی، مجھ سے یہ بری عادت نہیں جاتی۔ جب خداوند کے آگے جھک جائیں گے تو لمحوں میں عادت چھوٹ جائے گی۔ اچھی عادت اختیار کرنا چاہتے ہیں، خود سے نہیں ہوگی۔ آپ میں سے بہت سے لوگ فائٹ کر رہے ہیں، چھوٹ جائے، کسی طریقے سے گالیوں سے جان چھوٹ جائے۔ بہت سے لوگ فائٹ کر رہے ہیں کہ چوری سے جان چھوٹ جائے، اور چوری ایک طرح کی نہیں ہوتی، کام چوری بھی چوری ہے۔ اگر آپ کو کسی آفس میں کام ملا ہے یا کسی جگہ پہ کام کی ملا ہے، جیسے راج مستری، سارے نہیں، اکثر راج مستری دیہی سایا کرتے ہیں اور وہ ایک اینٹ لگا کے باتوں میں الجھ جاتے ہیں، ایک رندا لگا کے الجھ جاتے ہیں۔ بری عادت ہے، چوری ہے۔ تو اگر آپ سے عادت نہیں چھوٹتی، بری عادات نہیں چھوٹتی، شراب نہیں چھوٹتی، نشے نہیں چھوٹتے، گالیاں نہیں چھوٹتی، اور آپ چھوڑنا چاہتے ہیں، دل سے چاہتے ہیں، جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن فتح نہیں ملتی، اور سیدھا حل ہے یسوع کے آگے جھک جائے۔ ہاللیلویا۔ بھائی بہنوں، کیا حل ہے؟ یسوع کے آگے جھک جائے اور کہے، اے خداوند یہ مجھ سے نہیں چھوٹتی، تو سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، خداوند معجزہ کرے گا۔ ہاللیلویا۔ اور میرے والد صاحب نے ایسا ہی کیا۔ جب انہیں بتایا گیا، انہوں نے خداوند کے آگے سر جھکایا، توبہ کی، نجات پائی، اور سنے بہت سے لوگ بری عادات کو دنوں میں نہیں مہینوں میں چھوڑتے ہیں، توبہ کے بعد بھی سگریٹ پیتے رہتے ہیں، لیکن میرے والد صاحب نے جیسے ہی نجات پائی، پہلے ہی دن حکم کو آگے اوپر چھوڑے، اور پھر زندگی بھر حکم نہیں پیا۔ بچپن سے ماں باپ نہیں تھے تو بچپن سے ہی وہ حکم وغیرہ پی لیتے تھے، نشے کے عادی تھے، لیکن چھوڑ دیا لمحوں میں۔ تعلیم بجائے گی یہ سب چیزیں جو آپ کی جان کروا سکتا ہے۔
नशेबाजी से छूटना है, बुरी आदतों से छूटना है, बुरी जो लतें पड़ी हुई हैं, बाज़ लोग शराब पीते नहीं बेचते हैं, अगर उसमें भी आप फंसे हुए हैं तो फिर एक ही हाल है। मुझे पता है आप फाइट कर रहे हैं, मुझे पता है आप लड़ाई लड़ रहे हैं और कह रहे किसी तरीके से जान छूट जाए, झूठ भी बोलते हैं, और कई लोग झूठ को तो गुनाह समझते ही नहीं है। इंसान की किताब में बड़े बड़े गुनाहों की फहरिस्त में झूठ का एक नंबर है, झूठ। आज खुदावंद के आगे गए, खुदावंद मैं अच्छी कुश्ती लड़ी है, मैंने अपने तौर से लड़ी है, अपने तौर से लड़ी है, लेकिन फतह नहीं मिली, मैं अपने आप को तेरे सामने झुका देता हूं, सर झुका देता हूं, मिन्नत करता हूं, ऐ खुदावंद मैं नाकाम हूं, लेकिन अपने आप को तेरे सामने पेश करता हूं। अगर दिल से अभी आज इसी वक्त आप तौबा करेंगे, कहेंगे खुदावंद मैं कुश्ती नाकाम लड़ता रहा, दौड़ नाकाम करता रहा, और मेरा ईमान भी था कि मैं छूट सकता हूं, मैंने ईमान में फेल हुआ, आज इस जंग में जिसमें मैं फेल हो गया हूं, मैं जीतना चाहता हूं, ऐ खुदावंद मेरे गुनाह माफ कर, मैं अपने आप को सरेंडर करता हूं, अपने आप को तेरे ताबे करता हूं, और इकरार करता हूं कि मैं खुद से कुछ नहीं कर सकता। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। मैं चाहता हूं 1 मिनट के लिए आप खड़े हो जाए, 1 मिनट नहीं, आधा मिनट प्लीज खड़े हो जाए। प्लीज अपने हाथ ऊंचे कर दीजिए और चंद लम्हों के लिए सोचें, कोई ऐसा गुनाह, कोई ऐसी बदी, कोई ऐसी बुरी आदत जिससे आप फाइट कर रहे हैं, कुश्ती करने की कोशिश कर रहे हैं, फेल हो रहे हैं। सोचे होंगे ऐसे, और नहीं तो शायद झूठ बोलने की आदत, गाली देने की आदत, नशे करने की आदत, गालियां देने की आदत। आप जानते हैं कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाह के वारिस नहीं होंगे। सोचिए आपके सामने भाई, आगे बात रखिए, सोचिए, आंखें बंद किए हुए कहे ऐ खुदावंद, दिल में कह दे, बेशक मेरे पीछे ना बोले, दिल में कहे ऐ खुदावंद मैं फेल हो गया हूं, मैंने बड़ी लड़ाई लड़ी है, बड़ी जंग की है, बहुत कुश्ती लड़ी है, फेल हूं, मैं तेरे सामने अपने आप को खाकसार बना देता हूं, ताबे कर देता हूं, तू कंट्रोल ले ले मेरे ऊपर, मैं तौबा करता हूं, मेरे गुनाह माफ कर, मेरे दिल को अपने खून से धो के पाक कर दे। जब आप दिल से ये तौबा करेंगे, यीशु आपके गुनाहों को माफ कर देगा और आप फाते बन जाएंगे, शिकस्त में से निकल आएंगे, अच्छी दौड़ जीत लेंगे। हालेलुया, बोले हालेलुया। क्या आपने ऐसी दुआ की है दिल से? इबादत के बाद पास्टर हैरी को बताएं, मौसम को बताएं, वॉरियर्स ऑफ क्राइस्ट की जो बहनें भाई हैं उनको बताएं कि मुझ में ये बुरी आदत थी, आज मैंने तौबा कर ली है और मेरा ईमान है कि मैं जीत चुका हूं। हालेलुया, खुशी हो गए। यीशु के लिए तालियां और सच्ची से जोरदार। पौलुस रसूल ने जब ये आयत लिखी और तीमुथियुस को ये नाम खत लिखकर तहरीर करके तीमुथियुस को भेजा, उस वक्त पौलुस रसूल जेल में था, अपने किसी गुनाह की वजह से नहीं, उसे खुदा का कलाम सुनाने के जुर्म में नीरो बादशाह ने सजाए मौत का हुक्म दिया था, मुजरिम की तरह जकड़ा हुआ था, कैद में, सारे साथी जो है वो छोड़ चुके थे,
सिर्फ लूका साथ था। और बास लोग ये समझते हैं कि जो पौलुस है उसकी कहानी खत्म। जब वो कहते हैं कि अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने ईमान को महफूज रखा, तो बास लोग समझते हैं कि बस इतनी सी कहानी है उसकी। जी नहीं, कहानी तो अब शुरू होती है। ये सैड स्टोरी नहीं है, बल्कि इस कहानी में हमें उम्मीद नजर आती है, जुर्रत नजर आती है, दिलेरी नजर आती है, भरोसा नजर आता है। पौलुस रसूल जब जेल में था तो शायद कुछ लोग सोचते होंगे ये शिकस्त है उसकी, लेकिन पौलुस जानता था कि उसका जेल में जाना और फिर सजाए मौत का हुक्म होना और सजा पा लेना शिकस्त नहीं है, फतह है। बोले हालेलुया। वो अकेला नहीं, दुनिया में और बहुत से लोग हैं जो ईमानदार हैं। अभी ईरान, अफगानिस्तान, सोमालिया और कम्युनिस्ट कंट्रीज में बहुत से मसीही जेल में हैं, किसी गुनाह की वजह से नहीं, इसलिए कि उन्होंने अच्छी कुश्ती लड़ी है, ईमान को नहीं छोड़ा। उन्हें कहा गया यीशु मसीह का इनकार कर दो, उन्होंने इनकार नहीं किया, जेल में चले गए और अभी भी जेल में कुश्ती लड़ रहे हैं। उन्हें मौत का कुछ खौफ नहीं। कुछ लोग मौत को समझते हैं शिकस्त और मौत से बचना चाहते हैं, लेकिन मौत, अगर ईमानदार है, अगर आपने तौबा कर ली है, आपकी मौत गिरां कदर है, फतह है, शिकस्त नहीं है। और बहुत से लोग मौत से डरते हैं, लेकिन पौलुस जेल में ईमान के साथ मौत का इंतजार कर रहा था। मायूस नहीं था, बेहौसला नहीं था, परेशान नहीं था, बल्कि वो कहते हैं ये मेरे कूच का वक्त है। हाँ जी, वो लिखता है मेरे कूच का वक्त आ पहुंचा, यानी अब मैं सजाए मौत पाकर जो रोम की तरफ से मिलेगी सीधा आसमान में चले जाऊंगा। कूच का वक्त आ गया है। जैसे सुनिए गौर से, और कभी आपने कश्ती देखी हो तो कश्ती में मुसाफिर लंबे सफर में निकलते हैं समंदर में या किसी झील में, और आप उन्हें देख रहे हैं कि कश्ती जा रही है। चंद लम्हों के बाद कश्ती ओझल हो जाती है क्योंकि दूर निकल गई है। वो एक मंजिल से चलकर दूसरी मंजिल तक पहुंच जाती है। ऐसी जहाज उड़ता है, आप देखते हैं, और वो लाहौर से उड़कर सीधा दुबई चले जाता है। पौलुस ने जो लफ्ज कूच करने के इस्तेमाल किए हैं, उसका मतलब यही है एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। तो ईमानदार जो अच्छी कुश्ती लड़ते हैं, तौबा करके निजात पाके, जैसे अभी आप में से किसी ने तौबा कर ली है, तो आप एक दौड़ में भागना शुरू करते हैं, एक कुश्ती लड़ना शुरू करते हैं, और फिर उस जंग में फतह पाकर जब मौत की हालत में चले जाते हैं, तो आप एक नई मंजिल की तरफ चले जाते हैं। बोले हालेलुया, हेलो हालेलुया, हालेलुया। तो पौलुस कहता है कूच का वक्त आ गया है। वो अपनी मंजिल यानी आसमान की तरफ रवा है। और पौलुस रसूल जब इस दुनिया में था तो दो तरह की कुश्ती लड़ रहा था। मेरी तरफ देखिए, दो तरह की कुश्ती, दो तरह की जंग, दो तरह की दौड़। कैसे? एक तो ये कि उसे गैर जो कौमें थी, यहूदी और दीगर, वो बार बार उसे हथकड़ियां बनाते थे, सजाएं सुनाते थे, कोड़े मारते थे, और वो इस दौड़ में था, इस जंग में था कि किसी तरह से वो खौफजदा नहीं था, लेकिन इस दौड़ में वो ये सोचता था किसी तरीके से मैं बचकर, मौत से डरता नहीं था, लेकिन फिर भी सोचता था बचकर किसी तरीके से मैं अपना वो काम मुकम्मल कर लूं जो मुझे दिया गया है, मैं रूहों को बचा लूं।
मैं कलीसियाएं कायम कर लूं, मैं कलीसियाओं को खत्म नहीं करूं, मैं वो टारगेट पूरा करूं जो खुदावंद ने मुझे दिया है। इस दौड़ में था वो। और दूसरी तरफ ये सोचता था कि मैं कामयाब होकर इस मौत सी की परवाह ना करते हुए भी अगर मुझे मरना भी पड़े तो मसीह के लिए मरने के लिए तैयार हूं। बोले हालेलुया। इसलिए उसे कोई खौफ नहीं था और उसे पता था कि अगर मैं मर भी गया, बाकी उसने खुद कहा कि जिंदा रहना मेरे लिए मसीह और मरना नफा। वो कहते हैं ये मेरे लिए नफा है, अगर मर भी गया तो कोई बात नहीं, आसमान में चले जाऊंगा। और ये वैसे भी ये फायदेमंद है। किसी खुदा की खादमा से किसी ने पूछा, सिस्टर एलिस, तो किसी ने उससे पूछा जब वो पाकिस्तान में खिदमत करती थी, बड़े खतरे में थी, कई दफा उस पर अटैक हुए हैं, हमले हुए हैं। तो किसी ने उससे पूछा, सिस्टर जी अगर आप मर गई तो फिर क्या होगा? आप मर गई तो क्या होगा? कहती क्या की होना है, मैं अपने घर जल्दी चले जाऊंगी। समझ आई आपको? उसने कहा अगर मर गई तो क्या हुआ, मैं अपने घर जल्दी पहुंच जाऊंगी। हमारा वतन आसमान पे है। और पौलुस ये सोचता था अगर मर गया तो क्या हुआ, जल्दी चले जाऊंगा अपने घर, जब बाप मेरा इंतजार कर रहा है, जब खुदा मेरा इंतजार कर रहा है। जैसे फिलिप्पस का, जैसे स्टीफनस का इंतजार हो रहा था, जब उसको सजाए मौत हो गई, सजाए उसे संसार किया जा रहा था, उसने आसमान की तरफ देखा, खुदावंद यीशु मसीह खुदा के दाहिनी तरफ खड़ा है और उसका इस्तेकबाल कर रहा है। वो कहता है कोई बात नहीं, आसमान पे चला गया तो कूच है, ये तो सफर है, ये तो मंजिल है, तय कर दूंगा। बोले हालेलुया। आज ईमानदार जो है वो भी अपनी मौत से ना डरे, फतह पाए, फतह पाए, मौत से ना डरे। जिंदगी क्या है? खराब की मानद है, अब्दियत का इंतजार करें। याद रखें, सुनिए, हर शख्स की मौत आसमान पे जाने का रास्ता नहीं है, लेकिन मुद्दा पता की है, कब्रिस्तान से लिखा होता है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका। अगर उस शख्स की हिस्ट्री देखें तो आपको पता चलेगा वो शराब पीते हुए मर गया, वो चोरी करते वक्त गोली खा के मर गया, किसी को कत्ल करके वो कत्ल करने के बाद सजाए मौत हो गई और कब्र में चला गया। लेकिन कब्र में लिखा होता है अच्छी कुश्ती लड़ चुका। ये क्या कुश्ती है? ना उसने कुश्ती लड़ी है, वो तो गुनाह की जिंदगी बसर करता रहा, बस कब्र में चला गया। और माँ बाप ने बाद में खराइतें देने शुरू कर दी, न्याज़ें देनी शुरू कर दी, किसी तरीके से आसमान पे चला जाए, अच्छी नहीं, कुछ भी नहीं होगा। अगर वो आसमान पर जो जाना है, अगर आसमान पर जाना है, फतह पानी है, तो फतह की जिंदगी बसर करे। अभी वक्त है गुनाह पे गालिब आए, अभी वक्त है खुदावंद के आगे अपने आप को सरेंडर कर दे, ताबीर कर दे। और गुनाह पे गालिब आना चाहते हैं, जंग में जुटे हुए, अभी भी वक्त है कि खुदावंद ये जंग मुझसे नहीं जीती जाती, मैं अपने आप को तेरे ताबे करता हूँ। पर उसने तो जीत ली जंग, ईमान पे कायम रहा, ईमान पे कायम रहे, खुदावंद के साथ जिंदगी बसर करे और जंग में कायम रहे। खुदावंद फाते अजल है, वो इज अ डेथ किलर, उसने मौत पे फतह पाई है। अगर आप मर गए गुनाह में जिंदगी बसर करते हुए, फिर तो जहन्नम है। और अगर आप मर गए गुनाह पे गालिब आकर, तौबा करके, निजात पाके, गुनाह पे गालिब आकर और ये अपने आप को सरेंडर करके, तो फिर मौत आपके लिए एक रास्ता है, आप आसमान पे चले जाएंगे, उसका इंतजार करें। बाइबल में लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह के खादम पौलुस रसूल ये कहते हैं कि आइंदा को मेरे लिए, और ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि उन सब के लिए जो खुदावंद का इंतजार कर रहे हैं, एक ताज रखा हुआ है। कितने जो ताज चाहते हैं? पौलुस कहते हैं वो सबको देगा जो उसके ज़हूर के आरज़ूमंद है, उसके ज़हूर के आरज़ूमंद है। हालेलुया, बोले हालेलुया, खुशी से कहें हालेलुया। पौलुस कहते हैं हमारे लिए तो ताज रखा हुआ है।
اس لیے اگر چاہتے ہیں کہ موت کے بعد جہنم میں نہ جائیں، ابھی جیسے شروع میں نے آپ کو کھڑا کیا، موسم کی طرح، ہیری کی طرح، فرعون کی طرح، اوروں کی طرح، میری طرح بھی میں بھی گناہ میں زندگی بسر کرتا تھا، اپنے آپ کو خداوند کے آگے جھکا دے، سرنڈر کر دے، اور آج کہہ دے خداوند مجھ سے نہیں چھوٹتی، تو میری مدد کر۔ خداوند کے آگے سرنڈر کریں گے تو فتح پائیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر موت کا کوئی آپ کے اوپر اختیار نہیں ہوگا، آپ مرنے کے بعد بھی آسمان پہ چلے جائیں گے۔ بولے ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ موت آپ کی ایک منزل نہیں ہے، موت ایک راستہ ہے، اس سے نہ ڈرے۔ جب خداوند یسوع مسیح آئے گا، آسمان سے للکارے گا، جو اچھی کشتی لڑ چکے، جنہوں نے ایمان کو محفوظ رکھا، جو اچھی دوڑ چکے، یسوع مسیح آئے گا، اس کے لوگ اٹھا دیے جائیں گے۔ ہاللیلویا، جسے ریپشن کہتے ہیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آئیے چاروں کے لیے کھڑے ہو جائیں۔